To taxes and duties, the Finance Supplementary Bill 2021. A bill further to amend certain laws relating to tax and duties, the Finance Supplementary Bill 2020 introduced. The said bill shall not be referred to the Standing Committee as provided in Rule 122 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007. Supplementary order of the day. Item number 4A, Mr. Shaukat Tarisa, please. 4A. 4A. Sir, Mr. Speaker, I'd like to introduce a bill to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2021. G. A bill further to amend the State Bank of Pakistan Act 1956, the State Bank of Pakistan Amendment Bill 2020 introduced. The said bill has been referred to the Standing Committee concerned, i.e. the Standing Committee on the Finance and Revenue. Item number 5, Mr. Shaukat Tarisa. Item number 5. Mr. Speaker, I'd like to move the following resolution, that the National Assembly resolves to extend the Federal Government Properties Management Authority Ordinance 2021, Ordinance number 15 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 15/12/2021 under proviso to subpara 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the Federal Government Properties Management Authority Ordinance 2015 of 2021 for the further period of 120 days with effect from 15 December 2021 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution will say aye. All those say no. I think I have it considered the resolution adopted. Item number 6. Mr. Zawjir Babar. Item number 6. Thank you, Mr. Speaker. I move the item number 6, that the National Assembly resolves to extend the Elections Third Amendment Ordinance 2021, Ordinance number Roman 20 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 29th December 2021 under proviso to subparagraph 2 or paragraph A of Article 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. आप अपनी सीट पे चले, मैं आपको मौका देता हूँ, आप जाए उससे बात करें, उधर से आप उधर से जाए, बात करें, आप बात कर रहे, बात करें जी, बात करें जी नवीद कंवर साहब जी नवीद कंवर साहब प्लीज, नवीद कंवर साहब प्लीज, आप बात सुन ले प्लीज। ये रोज नई रवायतें पढ़ती जा रही हैं इस हाउस में, जहाँ न आइन को देखा जा मुझे दे रहे ये आप नवीद कंवर साहब प्लीज, नवीद कंवर साहब जी। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि आपने जो आइटम नंबर 5 ऑनवर्ड्स, यार एक मिनट, आप ये भी कहें कि जिन लोगों ने अपोज किया है रूल के मुताबिक उनको बात करनी, ये इस तरह से नहीं हो सकता। 6 इसमें से 8 ऑर्डिनेंसेस में से 6 ऑर्डिनेंसेस ऐसे हैं जो पहले से ही एक्सपायर हो चुके हैं। एक एक्सपायर्ड चीज को आप एक्सटेंड किस तरह से करेंगे? ये तो जैसे कोई मुर्दा शख्स हो, उसको कब्र से निकाल के आप उसमें सांस फूंक रहे हैं, ये नहीं होता। ये अननेचुरल चीज़ है, ये इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ है। ये
या तो तब होता एक्सटेंशन। इसको आप रिस्पॉन्ड करें, फिर बाबर अवाल साहब रिस्पॉन्ड करें। सर मुझे बात तो करने दो। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। दो बातें हैं जो वो इरशाद फरमा रहे हैं। एक वो ये कहते हैं कि ये चूँकि फाइल किया गया था और आज इसको से इस तरह आप नहीं ला सकते थे एजेंडे पे। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस विद इन टाइम हमने फाइल कर दिया था असेंबली में। अब जब जाहिर है इलेक्शन एक्ट जो पिछला मैंने पेश किया उसकी तरह से जब इसको लाया जाएगा जिस वक्त भी एजेंडे पे, उस वक्त ये कंसिडर होगा। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रोसीजरल लैप्स इन द प्रोसीजर व्हिच इज बीइंग अडॉप्टेड बाय द चेयर। Ruling, the ordinance which are being extended for a further period of 120 days under Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan do not contain any provision relating to punishment which cannot be inflicted retrospectively under Article 12 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. Since there is many precedents available regarding enforcement of laws respectively which do not certain provision relating to punishment. Therefore, there is no embargo in extension of these ordinances by the National Assembly retrospectively. Even otherwise, the resolution for extension of ordinances have been placed in the order of the day since the commencement of current session. However, could not be taken up due to adjournment of the sitting without transaction of business due to lack of quorum or otherwise. Therefore, I had the objection out of order and allowed the extension of the ordinance retrospectively by the National Assembly. जी ख्वाजा साहब जो अपना काउंट कर ले तो आपका अपनी जगह में काउंट करता हूँ ना। आप जाए ना अपनी सीट पे काउंट में करता हूँ, अपनी सीट पे खड़े हो जाए, काउंट करता हूँ। इसके बाद जी now I put the resolution to the House. It has been moved the National Assembly. Item number 6. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the election Third Amendment Ordinance 2021 to 20 of 2021 for a further period of 120 days with effect of 29 December 2021 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of class 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution में से आए, all those अगर से no, खड़े हो जाए अपनी सीट पे, जाओ ना अपने लोगों। Count be made, please. आप चैलेंज करें ना, उधर से चैलेंज करें तब होगा ना जी। आइटम नंबर 6 पर आप वोटिंग चैलेंज करते हैं? नवीद कमर साहब आप चैलेंज करते हैं? सर हम अपोज कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं? हाँ। काउंट बी मेड प्लीज। ऑल दोज इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन में स्टैंड राइज ऑन द सीट। ओके, आप अपोज कर रहे हैं और सिर्फ अपोज कर रहे हैं। चलो आगे जाए। All those in favor of the resolution में से आए, all those से no. I think I have it because the resolution is adopted. Item number 7. Dr. Mohammad Farooq Naseem साहब तशरीफ रखे भाई, तशरीफ रखे। फरोग नसीम साहब प्लीज। फरोग नसीम साहब, बाबर अवाल साहब। Thank you, Mr. Speaker. I move the item number 7 that the National Assembly resolves to extend the public properties removal of the encroachment ordinance 2021, ordinance number 27, Roman of 2021 for a further period of 120 days with effect from 22nd of December 2021 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A or clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to your House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the public properties removal of encroachment ordinance 2021
16 of 2020 for the further period of 120 days with effect of 22nd December 2020 under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph A of clause 2 of article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequent resolution is adopted. Item number 8. Babar Awan Sahab, please. Babar Awan Sahab. Thank you very much, Mr. Speaker. I move item number 8 that the National Assembly resolves to extend the regulation of generation, transmission and distribution of the electric power amendment, Ordinance 2021, Ordinance 27 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 22nd of December 2021. Order in the House, please. Order in the House, please. To sub-paragraph Roman 2. Order in the House, please. Small a of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the resolution of generation, transmission and distribution of electric power amendment Ordinance 17 of 2001 for the further period of 120 days with effect of December under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. Aye. All those that say no. I think ayes have it and consequent resolution is adopted. Ji. Shazia Marie. Challenge कर रहे? Sir, I challenge the vote. Count should be made. हाँ, ये चैलेंज वोट चैलेंज किया गया है. जो इसके हक में है, रेजोल्यूशन के हक में है, वो अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. जो अपनी सीटों के इसके हक में अपनी सीटों पर खड़े हो जाएं. काउंट बी मेड. अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. काउंट हो रही है. अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. और इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है और ऐसे में 2 अहम बिल पार्लियामेंट में पेश किए जा रहे हैं. अपोजिशन की जानिब से शदीद शोर शराबा और हंगामा आराई भी की जा रही है. इस वक्त हम आपको मनाज़र दिखा रहे हैं. अपोजिशन अपनी नशिस्तों से खड़ी होकर बैनर्स उठाकर एहतजाज कर रहे हैं. अपनी सीटों पे खड़े हो जाएं. जो रेजोल्यूशन के मुखालिफत में है वो तशरीफ रखे. जो रेजोल्यूशन के मुखालिफत में है वो तशरीफ रखे. अपनी टीम खड़ी करोगे. जी सर, शायद थोड़ी देर पीएम भी आएगी. आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने स्टेट बैंक तरमीमी बिल पेश कर दिया है. वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन मालियाती ज़िम्नी बिल पेश कर रहे हैं. ऐसे में हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया है. स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास. कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया गया है. नाज़रीन को बताएं कि ऐसा नहीं हो सकता. बार बार इस तरह की आवाज़ें अपोजिशन की जानिब से आ रही हैं. और आपको ये भी बताएं कि फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 समा ने कॉपी हासिल कर ली है. 0 रेटेड आइटम्स पर टैक्स छूट ख़त्म कर दी गई है और 9.5 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा. जबकि इस बिल के मुताबिक इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर टैक्स छूट ख़त्म होने से 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा. पावर सेक्टर के लिए इम्पोर्टेड मशीनरी पर दी गई छूट वापस लेने की तजवीज़ इसमें शामिल है. जबकि इसके अलावा बिल के मुताबिक इम्पोर्टेड मोबाइल फ़ोन पर 17% इजाफी टैक्स लगाने की भी तजवीज़ इसमें शामिल है. गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन फ़ीस एडवांस टैक्स में 100% इजाफे की तजवीज़. सोने चांदी समेत जेवरात पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 17% करने की तजवीज़. गैर मुल्की टीवी
सीरीज और ड्रामा पर एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़ भी इसमें शामिल है। 1000 सीसी से ज़ायद गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की भी तजवीज़ है। तो सैरिश ख़वातीन के लिए भी अच्छी खबर नहीं है। सुबह हम देख रहे थे इस तरह की खबरें थीं कि मेकअप महंगा होगा, लेकिन अब तो सोना चांदी भी महंगा होने जा रहा है। सोने चांदी समेत जेवरात पर टैक्स 1% था, जिसको बढ़ाकर अब बिल के मुताबिक 17% करने की तजवीज़ दी गई है। गैर मुल्की टीवी सीरियल्स और ड्रामे पर एडवांस टैक्स आयद करने की भी तजवीज़ दी गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि दरामदी सब्जियों, पैकिंग वाली मिर्चें, सीरियल्स पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। इसके अलावा डब्बे का जो दूध होता है उस पर भी, इसके अलावा मेकअप का सामान, बरामदी गाड़ियाँ और भी बहुत सारी ऐसी मसनूआत हैं जिन पर टैक्स बढ़ गया है। डेयरी मसनूआत की मशीनरी और साजो सामान पर 5% के बजाय अब 17% टैक्स की तजवीज़ दी गई है। तशहीरी मटीरियल, दरामदी अखबारी कागजात, इसके साथ साथ मैगज़ीन, किताबों पर भी 17% GST लगाने पर गौर किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के दरामद करदा या तोहफे में मिलने वाले सामान पर 17% GST, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा और सिफारती मिशन की जानिब से दरामद करदा अशिया पर भी 17% तक टैक्स की तजवीज़ दी गई है। बिल्कुल, इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास अब भी जारी है। 2 अहम तरीन बिल असम्बली में पेश किए जा रहे हैं और इस वक्त बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। जैसा अपोजिशन ने कहा था कि एहतजाज किया जाएगा, तो जो अपोजिशन अरकान इस वक्त मौजूद हैं असम्बली में शदीद नारेबाजी कर रहे हैं और इसी शोर शराबे में जो बिल है वो पेश भी किया जा रहा है। वज़ीर ख़जाना की जानिब से ये बिल पेश किया गया और उसके बाद शिकवार जो मंजूरी है उसका सिलसिला भी जारी है। तो इस वक्त हम आपको बताएं कौमी असम्बली में हाजिर हैं, बराह रास्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने रख रहे हैं। स्टेट बैंक तरमीमी बिल और मिनी बजट बिल असम्बली में पेश किया गया है और उसकी शिकवार मंजूरी के दौरान खूब शोर शराबा भी होता रहा और इसकी कॉपी, मिनी बजट बिल की जो कॉपी है वो सामान्य हासिल की और जो टैक्स छूट हुकूमत की जानिब से आवाम को दी गई थी वो टैक्स छूट ख़त्म की गई है। तो लोग भी काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं कि अब देखते हैं कि किस हद तक महंगाई में इजाफा होगा, क्योंकि दरामदी सब्जियां भी इसमें शामिल हैं, पैकिंग वाली मिर्च इसमें शामिल है। इसके अलावा सीरियल्स पर भी टैक्स आयद करने की तजवीज़ की गई है। आपको बताएं कि फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2021 समा ने कॉपी हासिल कर ली है। 0 रेटेड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म, 9.5 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। कहा जा रहा था, अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज पहले ही किया जा रहा था और कहा गया था कि इस पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा, इसको नामंजूर किया जाएगा क्योंकि इससे अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। पहले ही अवाम की जानिब से शिकवा है कि बहुत ज़्यादा महंगाई है इस हुकूमत में, तकरीबन 3 साल से जायद का ये अब वक्त हो चुका है, लेकिन हम देख रहे हैं कि महंगाई आसमान से बातें कर रही है और इस तरह का खदशात जाहिर किए जा रहे थे सैरिश कि अब जो ये आज सिलसिला होना है उसके बाद महंगाई का तूफान आएगा। ऑपोजिशन की जानिब से ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे कि लोग सड़कों पर निकल आएंगे और एहतजाज करेंगे और फिर हमने देखा कि अब ये जो बाकायदा तौर पर बिल की कॉपी सामान्य हासिल की है उसके मुताबिक 0 रेटेड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म, जबकि 9.5 अरब रुपए इजाफी बोझ पड़ेगा। बिल के मुताबिक इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर टैक्स छूट खत्म होने से 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हाँ। 145 members rose in favor of the resolution. 3 members rose in the resolution against the resolution. So the resolution is adopted. Item number. Now I put the resolution to your house. It has been moved. Item number 11. Item number now. Asad Umar Saab. Item number now. Babar Awan Saab, please. Ji, please. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move item number 9, which says that the National Assembly resolves to extend the Public-Private Partnership Authority Amendment Ordinance 2021, Ordinance number 28 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 22nd of December 2021 under proviso to subparagraph Roman 2 of paragraph small a of clause 2 of Article 89 of the Constitution. जी ख्वाजा साहब क्या फरमा रहे जी आप? जी ख्वाजा साहब प्लीज। जनाब स्पीकर शुक्रिया।
मैं बड़ा मेहरबानी है आपकी कि आपने इस माहौल में जहाँ पे अपोजिशन की, पाकिस्तान के अवाम की ज़बान बंदी करके आप जो है पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं। ये जनाब स्पीकर इस पार्लियामेंट का, आपकी कुर्सी का इट्स ए डे ऑफ इनफेमी। ये शर्मसार हमारी तारीख में एक ऐसे दिन की हैसियत से जाएगा जिसमें सारी कौम शर्मसार हो रही है कि पार्लियामेंट क्या बिहेव कर रही है इस वक्त। ये देखें, बेशक जो बोलना चाहता है बोले, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि आप वो ऑर्डिनेंस रिन्यू कर रहे हैं जो लैप्स हो गए हुए थे, जो एक्सपायर हो गए हुए थे। ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। आप जो है 1,1200 या 1,100 अरब रुपए के टैक्सेस जो है वो जो है विड्रॉ करके एग्जम्पशन अवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ तोड़ रहे हैं। जनाब वाला, आप सिटीजन हैं। जनाब स्पीकर, आप एक कॉमन सिटीजन भी हैं। स्पीकर के अलावा आप एक MNA भी हैं। आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें। पाकिस्तान को ना बेचें, पाकिस्तान के रुपए ना वसूल करें। आपने 3 साल यहाँ पे लूट मार की इजाजत दी। अगर आपने लूट मार की इजाजत ना दी होती दवाइयों वालों को, चीनी को, गंदम को, तो आपको ये नए टैक्सेस ना लगाने पड़ते, बजट ना लेना पड़ता। आपने लूट मार की इजाजत अपनी ATM को दी, इसलिए हम टैक्सेस यहाँ पे लग रहे हैं। असद उमर साहब प्लीज, जी प्लीज वाइड अप कर लें। जी ख्वाजा साहब प्लीज वाइड अप कर लें। कम बोलने का हक तो दें। मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के बिहाफ पे यहाँ पे बोल रहा हूँ। मेरी आवाज ना बंद करें, मेरी आवाज ना बंद करें। पाकिस्तान को सरेंडर ना करे, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को। जो मुल्क जो है माशी तौर पे गुलाम हो जाता है वो कॉलोनी बन जाता है। ये टेरिटोरियल ऑक्यूपेशन से भी ज्यादा बड़ा जुल्म है कि आप माशी तौर पे हमें गुलाम कर रहे हैं। खुदा के लिए ये क्या, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है, क्या आ गया ये यहाँ पे? थैंक यू जी। जनाब, मेरी बात तो सुने। आज इस पार्लियामेंट में तीन इश्यूज के ऊपर आपकी चेयर को शर्मसार होना चाहिए। आप ऑर्डिनेंस, आपको बताएं कि ख्वाजा आसिफ इजहार ख्याल कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि आप मुल्क की माशी खुद मुख्तारी बेच रहे हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी और PTI की गजाला सैफी में हाथापाई हुई है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, ये सेशन इस वक्त जारी है। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी और PTI की गजाला सैफी में हाथापाई हुई है। बात करेंगे वहाब कामरान हमारे साथ हैं। वहाब, इससे पहले हमने ऐसे मनाजर तो देखे हैं कि जो मर्द अराकीन हैं उनमें हाथापाई होती है, खवातीन भी लड़ पड़ी। जो है अमूमन जब भी कौमी असम्बली या सेनेट में कभी हाथापाई होती है तो मर्दों को भी आमी हाथों निमटते देखा। वहाब, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं पा रही है, रब्ता करते हैं आपसे। इस वक्त हम मनाजिर दिखा रहे हैं, कौमी असम्बली के ये मनाजिर हैं और नहायत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं। आज नहायत ही अहम दिन है जहां पर मिनी बजट बिल और स्टेट बैंक बिल यहां पर पेश किया जा रहा है, उसकी कार्रवाई चल रही है। और ऐसे में इस तरह की सूरत हाल सामने आना कि वो अरकान जो हमारी मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं और इस तरह की सूरत हाल इस जगह पर पेश आना, कौमी असम्बली में शगुफ्ता जवानी और PTI की गजाला सैफी में हाथापाई हो गई है। पीपल्स पार्टी की ये रुकन है शगुफ्ता जमाली और PTI की गजाला सैफी में हाथापाई हुई है। वहाब कामरान बताइएगा इस हवाले से। जी, हम हाथापाई है पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी और PTI की गजाला सैफी के माबैन। जैसे ही मिनी बजट पेश किया वजीर खजाना शौकत तरीन ने, तो इस दौरान अपोजिशन ने स्पीकर डाइस का भी घेराव किया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की प्ले कार्ड उठा रखे हैं अपोजिशन अरकान ने, जिनमें हुकूमत को मुखालिफ नारे दर्ज हैं। और इसी दौरान शगुफ्ता जमानी और PTI की गजाला सैफी के दरमियान हाथापाई हुई है। वीडियो में जो देखा गया उसमें तो नजर आ रहा है कि शगुफ्ता जुमानी ने गजाला सैफी को जोर से थप्पड़ मारा है। ताहम अपोजिशन अरकान का ये इल्जाम था कि पहल PTI की जानिब से की गई थी, गजाला सैफी ने पहल की, हाथापाई हुई और उसके बाद रिएक्शन में जो है पीपल्स पार्टी की रुकन ने वहाब कामरान, ये बताइएगा पता चल सका है बात यहाँ तक पहुँची किस बात पर, नुक्ता क्या था?
देखिए, जब एक अमूमन यही होता है कि जब भी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी होती है और लीडरान को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है जमातों की जानिब से, कारकुनान की जानिब से, तो इस तरह के मनाजिर देखने को मिलते हैं। और आज भी बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जब अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी और तनकीद का निशाना बनाया गया मिनी बजट को लेकर हुकूमत पर, तो तभी ये सारा मामला सामने आया। और वहाँ तो बिल्कुल इख्तिलाफ होना चाहिए, लेकिन साथ में एहतराम के साथ इख्तिलाफ होना चाहिए। इस वक्त कार्रवाई जारी है या बेच दिया है IMF के पास कर्जों के लिए। आप कहते हैं कि अपोजिशन का, पीपल्स पार्टी और PMLN की वजह से हमें ये सारा कुछ करना पड़ रहा है। जब 2018 में आप नारे लगाते थे कि आप दूध और शहद की नहरें यहाँ पे बहा देंगे, नदियाँ बहा देंगे, शहद की नदियाँ बहा देंगे, हम 200 अरब डॉलर बाहर से लेके आएंगे, 50 अरब डॉलर की रोजाना की। आपके पास हमारी भी बैलेंस शीट थी, हमारे दौर की भी, कि 5 साल में इकोनॉमी कहां पहुंची। आपके पास पीपल्स पार्टी की भी इकोनॉमी बैलेंस शीट थी। आपने वो बैलेंस शीट देखते हुए फिर भी वादे किए। ये इस हुकूमत की फेलियर है। झूठ बोलते रहे हैं पिछले 3.5 साल। अवाम को जिस तरह आपने चक्की में पीसा है महंगाई की, जनाब स्पीकर, आपका हल्का गवाही देता है, KP के सारे हल्के गवाही देते हैं कि आपने जुल्म किया है पाकिस्तान की आवाम पे और मजीद जुल्म करने आज जा रहे हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम में हम लोगों को 342 लोगों को यहां पे मुंतखब करके भेजा है ताकि हम उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये तनख्वाहदार का तबका जो है किस तरह सर्वाइव करे, किस तरह अपने बच्चों का पेट पाले, वो 20 या 25 या 30 या 40 हजार रुपया तनख्वाह में किस तरह गुजारा करे। आप जो दूध के ऊपर भी एग्जम्पशंस आप वापस ले रहे हैं, आप ऐसे डेली यूज की चीजें, बच्चों के दूध की जो एग्जम्पशन वापस ले रहे हैं। ख्वाजा साहब, मैं एक बात बताऊं जी, एक मिनट मैं होल्ड रखे। नंबर 1 तो ये है कि मैं इसके ऊपर पूरा डिबेट कराऊंगा और वो हम टाइम आप लोगों के साथ तय कर लेंगे, नंबर 1। नंबर 2, नहीं मैंने आपको शॉर्ट टाइम दे दिया। दूसरी जो आपने बात की है जो ऑर्डिनेंसेस है उसके बारे में मैंने पूरी रूलिंग दे दी है। आप रूलिंग को देख ले, जो मेरे पास जो कानूनी रूलिंग है मैंने दे दी है। तीसरी जी ख्वाजा साहब प्लीज वाइंड अप कर ले क्योंकि मैं आपको पूरा बात कर दूंगा। जनाब स्पीकर, आपकी रूलिंग जो है हमें उसका एहतराम है, लेकिन मैं उस रूलिंग के साथ एग्री नहीं करता। मैं आइन की एग्री नहीं करता। आपकी रूलिंग आइन के मुताबिक नहीं है, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप नहीं रिन्यू कर सकते इनको। 17 तारीख को 2 जो है ऑर्डिनेंस जो एक्सपायर हुए हैं, आपने क्यों नहीं उनको रीप्रोमulgate किया? एक जो है पिछले महीने हुआ है, एक कल हुआ है, ये क्या आज हुआ है जो एक्सपायर हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? इस हाउस का मजाक ना बनाएं खुदा के लिए। इसके तकद्दस का, इसकी तकरीम का, इसकी तौकीर का कुछ ख्याल करें। पाकिस्तान की आवाम का कुछ ख्याल करें। हमारे मुल्क में पहले भी क़यामत टूटी थी 16 दिसंबर को जब ढाका फॉल हुआ था। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। हम लोग ये असेंबली इस नाम से याद होकर की जाएगी कि हमने पाकिस्तान का मुआशी सरेंडर किया था। पाकिस्तान को हमने IMF की और IMF के जो सरप्रस्त लोग हैं, जो कौमें हैं, जो ममालिक हैं, उनका ये डिफेंस मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि मेरा मुंह बंद करिए। नहीं, वो कोई और में आप फिक्र ना करें। नहीं, अगर ये मुझे डायरेक्ट हुक्म करते मैं वैसे बैठ जाता हूँ। थैंक यू जी। देखिए, वाइंड अप कर ले। आपने जो वादे किए थे, आज भी उन वादों की गूंज जो है डी चौक में बाकी है। थैंक यू जी। इस हाउस में उन वादों की डी चौक। असदवर साहब। स्पीकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इनको बोलने का मौका दिया, क्योंकि ये जो तकलीफ आपको सुनाई दे रही है, ये तकलीफ हो क्यों रही है? कुछ हफ्तों से, बल्कि महीने से तूफान खड़ा किया हुआ था कि बस अब हुकूमत गई, अब इमरान खान गया, अभी जो है इनके आखिरी दिन आ गए। सर, इन्होंने अवाम को क्या मोबिलाइज करना है? यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। फिर इन्होंने बात की
कौमी सलामती की। सर ये देखें, वाकई में बहुत सही बात की। अभी किसी ने कहा कि शर्म नहीं आती, बड़ा अच्छी बात की किसी ने। सर ये इनको शर्म नहीं आती कि वो हुकूमत जिनके वजीर आजम, जिनके वजीर दिफा और पता नहीं कौन कौन से वजीर, कोई माली के अकामे पे, कोई धोबी के अकामे पे, कोई नाई के अकामे पे बाहर नौकरियां करते थे, वो हमें दर्ज दे रहे कौमी सलामती का। जो मोदी को, जो मुसलमानों के खून करने वाले नरेंद्र मोदी को अपने घर पर बुलाते हैं, इनको नहीं बुलाया था। ये जो सब ये तनख्वाहदार मुलाजिम जो है ना, इनको नहीं बुलाया था। बुलाया किसको? मोदी को। साड़ियां भिजवाई, तोहफे। आप तो हमारे भाई है, वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते सर। अच्छा सर, फिर ये कह रहे थे, अभी डरा रहे हैं कौम को, स्टेट बैंक का एक्ट आएगा तबाही आ जाएगी मुल्क को। मुझे पता क्या याद आ गया स्पीकर साहब, आज से कोई 1.5 साल पहले दुनिया में कोरोना आ गया, पाकिस्तान में भी कोरोना आ गया, तो एक साहब अच्छे भले, एक से बात अच्छे भले भागे हुए थे, मुल्क से भाग के लंदन में छुपे हुए थे, वो भागे भागे वापस आए, अपना रेज्यूमे उन्होंने अपडेट किया, जॉब एप्लीकेशन उन्होंने अपडेट की, और इधर आके उन्होंने लहराना शुरू कर दिया, मैं बचाऊंगा। वो किधर है सर? फर्क इनमें और हमने ये है, सिर्फ सादा सा फर्क है, ये डेंगी पे काम करते हैं, बेचारों को खुद ही इश्तिहार निकालने पड़ते हैं, खुद ही अपनी तारीफें करती हैं। हम कोविड पे बात काम करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ फोरम हमारी तारीफ करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हमारी तारीफ करता है, नॉर्मलसी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट मैगजीन का कहता है दुनिया में नंबर 1 पाकिस्तान है, दुनिया तारीफ करती है। फिर इन्होंने बोला सर पाकिस्तान की आवाम क्या कह रही है? पिछले सर्वे के अंदर 86% पाकिस्तान ने कहा, 86% पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने कोरोना के अंदर अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, ये कह रहे पाकिस्तान के अवाम। फिर इन्होंने बात की कि पब्लिक, ये जो ऑर्डिनेंस जिसकी बात कर रहे हैं सर नाअहल हुकूमतें, 5 साल उन्होंने गुजारे, 5 साल इन्होंने गुजारे, ये इदारा इनके भी नीचे था, 5 साल इन्होंने 10 साल में स्पीकर साहब 1 रुपए का तरक्याती बजट इस इदारे से नहीं करवा सके, 1 रुपए का। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 महीने के अंदर 400 अरब रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्ट्स की इसी इदारे ने मंजूरी कराई है, और 600 अरब रुपए की अगले 6 माह में कराने जा रहे हैं। फिर इन्होंने एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस की बात की, बड़ी टेक्निकल बात की। सर मैं भी आपसे स्पीकर साहब एक टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताएं कि एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस होता है या नहीं होता, इसके तो आप एक्सपर्ट हैं, आप इसका जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये जो एक्सपायर्ड सियासतदान है, इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है या नहीं है? अच्छा सर, ये इन्होंने केपी के रिजल्ट्स की बात की, खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट की बात की, वो उधर बैठे हुए मौलाना की पार्टी वाले वो बात करें तो हमें अच्छे भी लगते हैं यार, उनका कोई वजन बनता है, किसी वजह से वो बात कर रहे हैं, उनके अच्छे रिजल्ट आए हैं। सर ये जो बात कर रहे हैं, तहरीके इंसाफ अकेले ने 15 तहसीलें जीती हुई है अभी तक, इंशाअल्लाह ताला आगे जो रिजल्ट अभी आने वाले हैं ये 20 से ऊपर चली जाएगी। ये सारे मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP तीनों मिलके टोटल 9 तहसीलें जीत के बैठे हुए, अकेले तरीके इंसाफ से कम। तो मेरी सर लेकिन हैं तो हमारे ही कॉलीग्स इस हाउस के अंदर बैठे हुए, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें हाउस को एक करारदाद पास करनी चाहिए कि इन 3 जमातों को जो दफनाया गया है, 40 दिन का सोग इनके लिए जरूर ऐलान किया जाए। और उसके बाद आपको पता है, ये वही पार्टी है कि जिसके लीडर ने खड़े होकर यहां पर कहा कि वो पाकिस्तान का जवाब जिसको दुनिया ने देखा, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ भारत ने नजर उठाने की कोशिश की, हमने उनको सिर्फ जहाज गिराकर
कैदी बनाकर, चाय बनाकर जलील करके वापस नहीं भेजा। दुनिया ने देखा कि वो 6 गुना बड़ा मुल्क जो है हमसे खौफजदा है, और इनके लीडर कहते हैं टांगे कांप रही थी। आज शर्म की इंतहा होती है, शर्म की इंतहा होती है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लीडर खड़ा होकर पाकिस्तान के सरेंडर की बात कर रहा है। मैं सिर्फ इसी बात पे बात अपनी खत्म करूंगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend the Pakistan Council of Research in Water Resources PCRWR Amendment Ordinance 2021-19 of 2020 for the further period of 120 days with effect of 29 December 2021 under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph A of class 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. Item number 11. Sayyid Pakhribab Sahab. Sayyid Pakhribab Sahab. Item number 11. The Honourable Speaker, I hereby move that the following resolution, that the National Assembly resolves to extend the Pakistan Food Security Flow and Information Ordinance 2021, Ordinance number 21 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 7/1/2022 under proviso to sub-paragraph 1 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Thank you. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend the tax laws, 3rd Amendment Ordinance 2021-22 of 2021 for the further period of 120 days with effect for 12 December 2022 under proviso to sub-paragraph 1 of paragraph A of class 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those that say no. I think ayes have it. Consequently, resolution is adopted. Item number 10, Shivli Parag Sahab. Baba Rawal Sahab, please. Baba Rawal Sahab, please. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move that the National Assembly may resolve to extend the Pakistan Council of Research in Water Resources Amendment Ordinance 2021, Ordinance number 29 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 29 of December 2021 under proviso to sub-paragraph number 2 Roman of paragraph small a of clause 2 of the Constitution in terms of Article 89. Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolve to extend the Pakistan Council of Research in Water Resources PCRWR Amendment Ordinance 2021-19 of 2021 for the further period of 120 days with effect from 29 December 2021 under proviso to sub-paragraph 2 of paragraph A of class 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those against say no. I think ayes have it. I think ayes have it, and consequently the resolution is adopted. Item number 13. Mian Najibuddin Awais Sahab. Ji. Item number 12. Item number 12. Mr. Shaukat Fayaz Tareen Sahab, please. Mr. Speaker, I'd like to move a resolve to extend the tax laws amendment, 3rd Amendment Ordinance 2021, Ordinance number 22 of 2021 for a further period of 120 days with effect from 12/1/2022 under proviso to subpara 1 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan.
Now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolved to extend the tax laws, Third Amendment Ordinance 2021-22 of 21 for the further period of 120 days with effect from 12 December 2022 under proviso to subparagraph 1 of paragraph A, article of class 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those against say no. I think I have it. Consider the resolution adopted. जी स्टैंडिंग कमेटी का कोई है इस पे? दे रहे फिक्र दे रहे जी। नजमुद्दीन अवैस साहब, अली नवाज अवार साहब, हाँ, सदाकत अब्बासी, ये एक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। ये आइटम नंबर 13। आवाज आ रही है? दे रहे सर जी, दे रहे हैं। 13 पढ़ना है जी, प्लीज। I, on behalf of Chairman Standing Committee on Federal Education, Professional Training and National Heritage and Culture, to move that the delay in the presentation of report of the Standing Committee on the bill to establish the University of Engineering and Emerging Technologies, University of Engineering and Emerging Technologies, Bill 2021 till today be condoned. The report of Standing Committee on the G. Now I put the motion to the House. It has been moved that the delay in the presentation of the report of the Standing Committee on the bill to establish the University of Engineering and Emerging Technology, the University of Engineering and Emerging Technology Bill 2021 to be condoned. All those in favor of the motion may say aye. All those may say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 14. Sadakat Awashta, please. I, on behalf of Chairman, Standing Committee on Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture, to present the report of the Standing Committee on the bill further to establish University of Engineering and Emerging Technologies, Bill 2021. G. Further, G. The report of Standing Committee on the bill to establish the University of Engineering and Emerging Technologies, the University of Engineering and Emerging Technology Bill 2021 stand presented. जी राजा परवेज अशरफ साहब प्लीज मुख्तसर करेंगे ताकि नमाज का वक्त भी अब टाइम पे कर लीजिए प्लीज। इसके बाद हजरत असद साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर। शाह साहब, शाहमूद कुरैशी साहब, आप तशरीफ रखेंगे, बस थोड़ा करके ना। जनाब स्पीकर, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जिस अंदाज से असेंबली की कार्रवाई जो है वो जारी है और जिस तरीके से आप जो कानून साजी कर रहे हैं, तरमीम कर रहे हैं, जिस अंदाज से उसको बुलडोज किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान की पार्लियामेंट के तकद्दस में कमी वाक़या हुई है। मैं जनाब से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। होना तो ये चाहिए था कि ये जितने बिल भी आज यहाँ पेश किए जा रहे हैं या जाएंगे, उन पर एक ऑर्डिनेंसेस पर एक ऑब्जेक्शन आया था। ऑब्जेक्शन ये था कि क्या जो टाइम लैप्स्ड है, जिनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, क्या आप एक सिंपल रेजोल्यूशन के साथ उसको बहाल कर सकते हैं? अगर वो आईने पाकिस्तान में उसका एक तरीका कार दर्ज है, तो वो तो या तो फिर आपको 2/3 मेजॉरिटी यहाँ चाहिए होगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस किसी ने भी आपको ये मशवरा दिया है, जो भी अक्लमंद था, उसने आपसे गैर कानूनी और गैर आनी काम करवाया है, जिससे इस पार्लियामेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग आया। दूसरी बात जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहूँगा जनाब स्पीकर, मैं वो चीज़ें नहीं दोहराना चाहता जो ख्वाजा साहब ने बात की। कल जब मैं खड़ा हुआ था यहाँ पर, तो डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे।
तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ 6 में गोइयाँ हो रही हैं कि कोई मिनी बजट आ रहा है, कोई नई टैक्सेशन आ रही है, महंगाई में इजाफा होने जा रहा है, पाकिस्तान की आवाम जो पहले ही एक किस्म के मफलूज हो चुकी है उनकी सारी ज़िंदगी, उन पर मज़ीद जुल्म ढाने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने फरमाया, इसी चेयर ने फरमाया कि नहीं जनाब, ऐसा तो कोई बजट नहीं आ रहा, ऐसा तो कोई बिल पेश नहीं किया जाएगा, जब ऐसा बिल आएगा तो फिर हम आपको बात करने का मौका देंगे। वो ये बात करके चले गए। जब बिल आया तो आप तशरीफ ले आए और आपने हमें बात करने से रोक दिया। वो वक्त था कि हम बात करते। जनाब स्पीकर, एक तरीका तो यह है हाउस चलाने का जो अब चल रहा है जिस तरीके से आप कह सकते हैं जनाब कि हमारे पास 10-12 मेंबर्स की या 5-7 मेंबर्स की मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, हम जैसे चाहें कानून साजी कर लें। लेकिन मैं आपकी तवज्जो इस बात पर दिलाना चाहता हूं कि कानून साजी कोई पीटीआई के लिए नहीं हो रही, कानून साजी कोई पीपल्स पार्टी के लिए नहीं हो रही, कानून साजी कोई JUI के लिए नहीं हो रही, कोई मुस्लिम लीग N के लिए नहीं हो रही। कानून साजी आप कर रहे हैं पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के लिए, और आने वाले वक्तों पर उसका इतलाक होगा। ये कैसा कानून साजी हम कर रहे हैं कि इस तरफ से वावेला हो रहा है कि आप हमारी बात तो सुने, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ से ख्वाजा आसिफ जो है वो पार्लिमानी लीडर ने एक बात की, अब उसका जवाब ट्रेजरी बेंचों से क्या आया? जनाब स्पीकर, आप खुद एक बड़े मंजे हुए सियासतदान है, क्या कहा है असद उमर ने उसके जवाब में? असद उमर ने कोई जवाब दिया, किसी सवाल का जवाब दिया? क्या इस हाउस को वो मुतमईन कर सके? क्या आपकी जाते ग्रामी को वो मुतमईन कर सके? यकीनी तौर पर जिस किसी ने भी उनकी बात सुनी है उसको मायूसी हुई होगी। एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ नहीं, आप एक वजाहत करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह जो ये अमेंडमेंट्स आए हैं इसके ऊपर हम पूरा डिबेट करवाएंगे और वो सेनेट की रिकमेंडेशन आ जाएंगे तो सबको मौका मिलेगा। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि हाउस का जो है वो माहौल खराब है, कभी भी नहीं चाहूंगा। लेकिन ये तो मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूं कि हुकूमत वक्त का जो तौर तरीका है वो इतना ऑब्जेक्शनेबल है, वो इतना नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं समझता हूं कि वो आपके लिए भी मुश्किलात पैदा करते हैं, आपको भी उन्होंने मुसीबत में डाल दिया। हो सकता है कि आप चाहते हो कि ये हाउस अच्छे तरीके से चले, कानून के मुताबिक चले, असूलों के मुताबिक चले, पार्लिमानी प्रैक्टिस के मुताबिक चले, लेकिन ये नहीं चलने देते ये वज़रा, क्योंकि ना इनके पास तजर्बा है और ना इनको वो जो पार्लिमानी दानिश होती है वो इनके पास है। ये क्या कानून साजी करेंगे कि उठ के तोते की तरह पढ़ देते हैं, ना किसी को समझ आती है क्या है, ना उनको समझ है। और जब हम जवाब मांगते हैं हम ये कहते हैं कि हम अपोजिशन है, हम पाकिस्तान के अवाम को जवाब दें। हैं तो आप भी जवाब दें, लेकिन शायद इनको समझ लगी है कि अब अवाम के जो पाकिस्तान के अवाम इनके साथ नहीं, तो ये उनसे इंतकाम लेना चाहते हैं, ये उनकी मुश्किलात में इजाफा करना चाहते हैं। मुझे बताएं जनाब स्पीकर, मुल्क में महंगाई है या नहीं? किसको लोग कहेंगे कि महंगाई कंट्रोल करो? हुकूमत को कहेंगे ना, हम भी हुकूमत को कहेंगे कि देखिए मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है। ये आगे से क्या कहते हैं? ये आपकी वजह से। अरे भाई चलो, अगर हमारी वजह से है तो इस पर बहस करो ना। आपने 3.5 साल जाया कर दिए इसी तरह ताने देकर, इल्जामात लगाकर, और प्रैक्टिकली अमलन जनाब स्पीकर हकीकत यह है कि यह हुकूमत हर महाज पर फेल हुई है। और ये जो मजाक कर रहे हैं ना इस पार्लियामान के साथ, जो पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की दानिशगाह है उसके साथ ये मजाक कर रहे हैं, उसकी तौकीर में इजाफा नहीं बल्कि उसकी जो है बेइज्जती करने चाहते हैं ये लोग। तो मैं इनको वार्न करता हूं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। जब आप उनके हत्थे चढ़ेंगे ना इलेक्शन में, इंशाल्लाह ताला वो आपको दिन में तारे दिखाएंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था सर, जनाब स्पीकर, आपसे मेरी ये गुजारिश, आप में बड़ा तहम्मुल है, आप पहले भी स्पीकर रहे हैं। जब ये बेशक शोर करती रही हुकूमत, यहाँ स्पीकर आपके पहले भी थे, हुकूमत वो कहती है हमेशा कि आप बुलडोज कर दो, जल्दी कर दो। ये पहले सोए रहते हैं, इनको कोई पता नहीं होता कि इनके कौन कौन से ऑर्डिनेंसेस लैप्स हो गए। फिर जब इनकी आंख खुलती है तो ये आपको इस्तेमाल करते हैं। मैं समझता हूं कि ये बड़ा कबीह फेल है
कि जो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है उसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं, उसकी मैं समझता हूँ इज्जत कम करना चाहते हैं। तो इनको मैं इनकी इस बात की मजम्मत करता हूँ कि ये स्पीकर को कंट्रोवर्शियल करते हैं। कल अगर आपके खिलाफ कोई तहरीक उठती है उसके जिम्मेदार ये होंगे। आज अगर मेम्बरान कोई ये अगर तहरीक नाकाम भी होती है जनाब वाला, वो आपकी इज्जत में इजाफा नहीं कमी करती है। जिस स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद आती है तो ये मजबूर करते हैं अपोजिशन को कि हमारे स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद करो। ये इस तरह के लीडरों को गालियां देकर मजबूर करते हैं कि हमारे लीडरों को गालियां दो। जब ये नवाज शरीफ को गाली देते हैं, जब ये जरदारी साहब के खिलाफ अर्जासराई करते हैं, इनका मकसद ये होता है कि इमरान खान को गाली दो। ये है इनकी सियासत। थैंक यू जी, थैंक यू जी। वाइंड अप कर ले प्लीज, वाइंड अप कर ले, वो नमाज का टाइम भी हमारा जी। जनाब स्पीकर मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज डोंट कमेंट्स। जनाब आप प्लीज। जनाब स्पीकर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि 3.5 साल में तेल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, खाने पीने की अशिया में कितना इजाफा हुआ, लोगों की कीमतें खरीद कितनी कम हुई या कितनी बढ़ी, क्या उस पर हम बात नहीं कर सकते? जनाब स्पीकर क्या आप हमें रोक देंगे कि अगर हम बाहर जाते हैं तो लोग फरियादी बनकर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि आप कौमी असेंबली के मेंबर हैं, आप हमारा मसला क्यों नहीं उठाते? क्या हम उनको ये कहें कि हमारा पाला एक ऐसी हुकूमत के साथ पड़ गया है जिनकी कोई न समझ है, न बूझ है, न दानिश है, इसलिए मैं आपसे न तजर्बा है। जनाब स्पीकर मैं सिर्फ आपसे ये चाहूँगा कि आप अपना न्यूट्रल किरदार अदा करें। यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस। और अगर मैं आपको बताऊं कि आप हमें जिस नजर से आप उधर देखते हैं उससे ज्यादा खूबसूरत नजरों से यहाँ देखें है, इस तरह है। हम भी आपके मेंबर्स हैं, बिल्कुल। ये तकरीबन 50-50 हम लोग। आखिर में जो मैं गोशगुजार करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की कमर बिल्कुल टूट चुकी है। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कोई आदमी, खाए वो अमीर है, खाए वो गरीब है, खाए वो किसान है, खाए वो लेबर है, खाए वो मजदूर है, खाए वो दुकानदार है, खुदा की कसम जहां पर भी हम जाते हैं वो खड़ा होकर इस हुकूमत को बददुआएं देता है, लेकिन हमसे भी ये तकाजा करता है कि हम उसकी बातें इधर आकर बताएं। थैंक यू जी, थैंक यू। नहीं जनाब वाला सुन ले जरा, अब मुझे ये बताएं, मैं तो ये चाह रहा था कि जनाब वजीर खजाना आकर कहते कि इतना मुल्क में वावेला मचा हुआ है, इतने एहतजाज हो रहे हैं, गरीब रो रहा है, लोगों के चूल्हे ठंडे हैं, तो मैं आया हूं और मैं कीमतों में कमी करने के लिए आया हूं, मैं लोगों को रिलीफ देने के लिए आया हूं, मैं आपके लिए कोई बेहतरी का सामान लेने के लिए आया हूं। ये तो टैक्स लगाने के लिए आगे IMF से लें कर्जे, लेकिन पाकिस्तान के गरीब आवाम का भी तो ख्याल रखें जिनकी हड्डियों से भी आपने जो है वो हर चीज निचोड़ कर थैंक यू जी, थैंक यू। अब उनके असद महमूद साहब प्लीज जी, वाइंड अप कर ले। आपने भी जाना है अपने हल्के में, इन्होंने भी जाना है, शायद वजीर खजाना साहब को नहीं जाना हो जी। राजा साहब, जब ये पाकिस्तान के अवाम के सामने जाएंगे मुझे खौफ आ रहा है। हम भी शायद इतने पॉपुलर नहीं थे, नहीं होंगे, लेकिन खुदा की कसम जो आपकी दुर्गत बनने जा रही है आपको फिक्र ही नहीं है। खुदा के लिए सोचो, आप अभी अपने हल्कों में नहीं जा सकते। शाह महमूद कुरैशी साहब बताएं, ये अपने हल्के में जा सकते हैं जी, आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। शायद अपने मरीदों के पास तो जा सके, लेकिन आम वोटर के पास नहीं जा सकते। असद महमूद साहब प्लीज, असद महमूद साहब प्लीज, जनाब ये मुझे प्लीज भी आखिरी फिक्रा बस आखिरी जी। राजा साहब प्लीज लास्ट। जनाब स्पीकर मेरी आपसे गुजारिश है कि जितनी आज की कार्रवाई होगी है इसको आप रिजेक्ट कर दें, इसको आप वापस ले लें और नए सिरे से दोनों तरफ से बातें सुने, हमारे आर्गूमेंट भी सुने, इनके आर्गूमेंट भी सुने। अगर आपका ज़हन ये कहे कि हाँ पाकिस्तान के अवाम के ऊपर ये जुल्म ढाना जायज़ है, पाकिस्तान के तबाह हाल अवाम को मजीद तबाह करना जायज़ है, तो फिर आप कानून साजी कराएं, वरना मेहरबानी करके ये वापस लें सारी कार्रवाई। जी असद साहब प्लीज।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मुझे आज की कार्रवाई पर भी और इससे कबल जो पिछला सेशन था उसमें भी आखिरी दिन जिस तरह आपकी कुर्सी का किरदार रहा, मैं उस हवाले से भी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं आपकी क्या मजबूरी है कि आप ऐवान को इस तरह मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं ये गुफ्तगू नहीं करना चाहता और न मैं इस मिजाज का आदमी हूँ, लेकिन जहाँ पर फ़राइज़ मनसबी का सवाल है, आपसे भी, हम सब से भी, हुकूमत के मेंबरान से भी, तो कम से कम जो उसूल हैं, जो क़वाइद व ज़वाबित हैं, जो आइन है, इस मुल्क का आइन, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का आइन, इस मुल्क में रहने वाले 22 करोड़ का आइन, अवाम का आइन, कम से कम उस आइन को के ज़ाब्ते का तो ख्याल कर लिया करे। इस तरह बाहर से माशी पॉलिसियाँ और उस पर इक़दामात करना हुकूमत की, आपकी हुकूमत ने इन 3.5 सालों में खारजा पॉलिसी को भी तबाह किया, माशी पॉलिसी को भी तबाह किया, मुल्क के अंदर अमन व अमान भी तबाह हुआ आपकी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से। और मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में अगर कोई कौम अपनी रियासत के साथ सबसे ज़्यादा वफ़ादार है तो मैंने इस मुल्क के अवाम से ज़्यादा वफ़ादार इस रियासत के साथ किसी को नहीं देखा कि जिसके लिए आप इस किस्म की पॉलिसियाँ लाते हैं और वो फिर भी अवाम रियासत के साथ खड़ी है, वो बगावत पर नहीं उतरती आपकी खारजा पॉलिसियों की वजह से, वो बगावत पर नहीं उतरती आपकी माशी पॉलिसियों की वजह से। आज जो जुल्म और बर्बरियत आप कौम पर दोबारा मुसल्लत कर रहे हैं टैक्सेस की सूरत में, आपने कहा था कि हमने बजट में कोई अवाम पर टैक्सेस नहीं लगाए, आज आपको क्या ज़रूरत पड़ी है? और हम सवाल कर रहे हैं जनाब स्पीकर आपसे कि ऑर्डिनेंसेस आपने लाए हैं, आपने जो रूलिंग दी है वो आइन के साथ मुतसादिम है, वो आइन के खिलाफ है, आप उस पर जवाब नहीं देते। और यहाँ पर एक मेंबर कौमी असम्बली जो हुकूमत की तरफ से जवाब दे रहा है, वो उन सवालात को एड्रेस नहीं कर रहा जो अपोजिशन उठा रही है और अपने मईशत के हवाले से वो गुफ्तगू कर रहा है कि तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियाँ वो ज़बरदस्त हैं। अगर तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियाँ ज़बरदस्त थी तो आपको इस वजारत से क्यों हटाया गया? आपके बाद दूसरे वज़ीर को इस वजारत से क्यों हटाया गया? क्या मजबूरी थी? अगर पिछली हुकूमतों का कसूर था तो आपकी वजारतों में तब्दीलियाँ क्यों लाई जा रही हैं और क्यों लाई गई हैं? आज हम आवाम के हुकूक की बात करते हैं, उन हुकूक के जो आइन ने उनको दिया है, जो कानून ने उनको दिया है, लेकिन आप अपोजिशन की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप खुद बताएं कि आपके IMF के प्रोग्राम में आप ही ने कहा था कि हम खुदकुशी कर लेंगे अगर हम IMF के पास जाएंगे। आज आप अपने स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को दाव पर लगा रहे हैं, आप अपनी माशी खुद मुख्तारी को दाव पर लगा रहे हैं। आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर, अगर हम आपसे सवाल नहीं कर सकते, हम आपसे सवाल ना करें, हम हुकूमत से सवाल ना करें, तो फिर वो जगह बता दें कि जहां पर हम सवाल करें और हमें जवाब भी मिले। आप कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन को भी कुछ नहीं समझते, आप सेनेट को भी कुछ नहीं समझते, आप अवाम को भी कुछ नहीं समझते, आप मजदूर तबके को भी कुछ नहीं समझते, आप किसान तबके को भी कुछ नहीं समझते, आप सरकारी मुलाजमीन को भी कुछ नहीं समझते, आप तलबा को भी कुछ नहीं समझते, आप असातिज़ा को भी कुछ नहीं समझते। आप मुझे बताएं कि वो कौन सा इदारा है
कि जिससे आपको खौफ होता है, हम उनके पास ये आवाम के हुकूक की बात वहाँ ले जाएं, उनसे मिन्नत करें कि आप इन हुकूमती अराकीन को समझाएं। आपने कौमी असम्बली को इतना बेतौकीर किया है कि यकीन जाने गुज़िश्ता 2 हफ्ते कबल या 1 हफ्ता कबल इंतखाबात हुए, आपने कानून साजी की। उन कानून साजी पर जब अपोजिशन की तरफ से अवाम ने तायीद दी, आपने नोटिफिकेशन जारी किए। जिस तरह आप यूनियन कौंसल, जिस तरह आप विलेज कौंसल, जिस तरह आप तहसीलों को चलाना चाहते हैं, खुदारा कौमी असम्बली को इतनी वक़्त तो दे दें। यूनियन कौंसल की जितनी वक़्त तो इस कौमी असम्बली को दे दें। जिस तरह आप ऐवान चला रहे हैं, हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे जहन में सवालात हैं कि आप एक गैर आईनी इक़दाम कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। ये तो अलग बात है कि एक चीज़ आप पेश कर रहे हैं, उस पर मैं आपसे इख्तिलाफ करूँगा या मैं आपसे इत्तेफाक करूँगा, लेकिन जो तरीक़ेकार और ज़ाब्ता-ए-कार है उस पर हमें एतराज़ है। आप अपोजिशन को नहीं सुन रहे। 2 मरतबा आपने कहा कि काउंट बी मेड और किसी ने आपके कहने पर यहाँ पर अमल नहीं किया। उसके बाद आपने प्रोसीजर जारी किया, एजेंडे को जारी रखा और काउंट बी मेड वाली रूलिंग आपकी ऐसी ही रह गई जिस तरह मेरा काम सिर्फ ये असद साहब एक मिनट होल्ड ऑन। नंबर 1 ये कि मैंने जो रूल्स के मुताबिक किया है, अगर आपने नहीं किया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नंबर 2 जो आपने बात की, मैंने जो किया है मैंने कानून के मुताबिक किया है, रूल्स के मुताबिक किया है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक किया है। कोई काम ऐसे नहीं किया। मैं मुश्ताक अली साहब को वेलकम करता हूँ। KPK की स्पीकर तशरीफ लाए, इसको वेलकम करते हैं। जी प्लीज। जनाब स्पीकर, आपने ये कानून साजी तो इस पर तो हमारी राय आनी ही आनी है जिस तरह आपने कहा, लेकिन जिस तरह आपने यहाँ पर दीगर कानून साजी की, ऑर्डिनेंसेस जो लैब्स थे उनको दोबारा लाया, हम उसको गैर आईनी समझते हैं। आपने रूलिंग दी है, आप ऐसी कुर्सी पर बैठे हैं कि आप रूलिंग दे सकते हैं, लेकिन इससे कबल भी इन कुर्सियों पर ऐसे स्पीकर बैठे हैं कि जिनको तारीख़ अच्छे अल्फाज से याद भी करती है और अच्छे अल्फाज से याद भी नहीं भी करती। तो आपके रूलिंग से कम से कम इस कुर्सी की तारीख़ में एक और बाब का इजाफ़ा होगा। लेकिन इस हवाले से भी कि यहाँ पर स्पीकर साहब, आपके एक वज़ीर ने पूरी अपोजिशन को ताना दिया कि आपने बल्दियाती इंतखाबात में इनको मुस्तरद किया। जनाब स्पीकर, आपके वज़रा की और आपके अपने हलकों की इंतखाबात में जिस तरह की गुफ्तगू हुई, वीडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं, ऑडियो क्लिप्स भी मौजूद हैं कि आपने 70 करोड़ रुपए जारी किए, आपके वज़रा ने जारी किए, आपने लोगों को इक़्तिदार से धमकाने की कोशिश की, आपने लोगों को पैसों से खरीदने की कोशिश की, आपने लोगों को प्रोजेक्ट देने की लालच दी। लेकिन एक बात जनाब स्पीकर, मैं अपनी ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आप जो है ना जनाब स्पीकर मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर लूँ। जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा ने आपके इक़्तिदार में होते हुए आपकी पार्टी को मुस्तरद किया, आपके प्रोजेक्ट्स को मुस्तरद किया, आपके पैसों को मुस्तरद किया, और जो अजला बाकी हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, चाहे वो पंजाब के अंदर हो, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो, इंशाअल्लाह आपका नविश्ते दीवार लिखा जा चुका है। आप अपने अंजाम को पढ़ लें और आप अंदाज़ा कर लें कि किस तरह इस इक़्तिदार में होते हुए भी आपने लोगों को 66 तहसीलों में सिर्फ आप 15 तहसीलें जीते हैं, सिर्फ 15। और मैं चैलेंज करता हूं, आप आज भी नहीं जीते और आप कल भी नहीं जीतेंगे इंशाअल्लाह।
नहीं वैसे एक मिनट कबूल किया था जनाब स्पीकर। गपशप के लिए एक बात करते हैं जनाब स्पीकर, आपके अपने इलाकों में पोजीशन अच्छी नहीं है जनाब स्पीकर। 2.5 अरब रुपए और 70 करोड़ की लालच गपशप नहीं होती, यह हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। आपकी अपनी सवाबी के अंदर मैं इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि आपके अपने तहसील के अंदर तमाम पोलिंग स्टेशनों पर आप हारे हैं और आपने तमाम पोलिंग स्टेशनों को कवर किया सिर्फ अपने 2 पोलिंग स्टेशनों के जरिए कि आपने वहां रिकॉर्ड से भी ज्यादा वोट पोल किया। आपको जवाब देना होगा। एक मिनट आपके साथ मेरा चैलेंज है। जवाब देना होगा आपने, मौलाना देना होगा। आपके साथ मेरा चैलेंज है स्पीकर। एक मिनट मैं साउथ में चैलेंज करता हूँ। नहीं गलत बयानी कर रहे हैं जनाब स्पीकर, गलत बयानी कर रहे हैं ऐसे नहीं मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि अगर आपने ये साबित कर दिया स्पीकर ऐसे नहीं चलेगा। हर जगह शिकस्त मिली है। आपको मेरी बात सुनना होगी जनाब स्पीकर, आपको मेरी बात सुनना होगी जनाब स्पीकर, आपको मेरी बात सुनना होगी जनाब स्पीकर, आपको मेरी बात सुनना होगी। और जब आपको इलेक्शन के 1 रोज कबल रिपोर्टें आ जाती है कि आप सूबा हार रहे हैं, तो आपका इमरान खान कहता है कि मुझे डेरा इस्माइल खान और मुझे पेशावर और मुझे बन्नू बाहर सूरत चाहिए। आपको आवाम ने बाहर सूरत मुस्तरद किया है, आपको आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। तो ऐसे नहीं है जनाब स्पीकर। अगर मैं इस फोरम पर एक बात कर रहा हूं, आप कहां से कहां चले गए, अपने टॉपिक से आगे चल गए। आपको फिर इंशाअल्लाह ताला पता चल जाएगा। आइंदा शाहूद कुरैशी साहब प्लीज, शाहूद कुरैशी साहब प्लीज। वाइड अप कर ले प्लीज, वाइड अप कर ले, वाइड अप कर ले, वाइड अप कर ले। जी प्लीज ऑन करें, असद महमूद जी। मैं आखिर में एक बात करना चाहता हूं, वो ये कि ये कैसा मुल्क है कि यहां पर इमरान खान के घर को तो रेगुलराइज कर दिया जाता है, लेकिन कराची में 40-41 साल से बनी गई मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। यहां आप कौमी असम्बली से बाहर निकले, मैं आपको बिल्डिंग्स दिखाऊंगा कि वो गैर कानूनी है और आपकी हुकूमत में उनको कहा जा रहा है कि आप पेनल्टी भर दे, आपको रेगुलराइज किया जाता है। अवाम की झोंपड़ियों को न गिराए जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आप अगर ये इकदाम करना चाहते हैं, आप बिला तफरीक करें, आपको कोई ताना नहीं देगा, कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। लेकिन अगर मसाजिद शहीद होंगी, ऐसी मसाजिद भी शहीद की गई है जो पाकिस्तान बनने से भी पहले कि वहां तामीर हुई है, आप उन मसाजिद को भी शहीद कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये संजीदा नौयत का मसला है। मसाजिद के हवाले से आपको रूलिंग देनी चाहिए। ये मसला अहम मसला है, अवाम के अंदर भी इस पर इश्तिआल आएगा। खुदा न खास्ता आपकी कराची में बहुत बड़े मसाइल पैदा होंगे। इस तरह के हसास नौयत के मसाइल का नोटिस आपको लेना चाहिए और उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। थैंक यू। वाली मस्जिद पर रूलिंग दे दे। रूलिंग वो सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें क्या सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। जी वाइड अप कर ले प्लीज। जनाब स्पीकर, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तो रूलिंग नहीं दे सकते, लेकिन आप आईन के खिलाफ रूलिंग देते हैं। आपकी बात हुकूमत के हक में हो तो आईन बन जाती है, और आपकी बात कौम के हक में हो तो आप उसमें दूसरे इदारे ले आते हैं। जनाब स्पीकर, अवाम इस हवाले से जिस तरह अमन व अमान के मसाइल हैं, जिस तरह मईशत के मसाइल हैं, जिस तरह हम दुनिया के अंदर अकेले हो गए हैं। मैं संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, लेकिन कभी भी आपने शुरुआत का इस ऐवान के इजलास में शुरुआत ही ऐसी हो जाती है कि हम उस पर गुफ्तगू नहीं कर सकते। जनाब स्पीकर, ये सब दर्द दिल रखने वाले लोग हैं, ये बात करना चाहते हैं, ये
मुल्क हम सबका है। अगर आपके गलत फैसलों की वजह से मुश्किलात कौम को दरपेश होती है, मईशत को दरपेश होती है, खारजा पॉलिसी के हवाले से हो या दाखिला उमूर के हवाले से हो, कम से कम उसमें आपको अपोजिशन को सुनना चाहिए। आज भी आपने नहीं सुना और हम चाहते हैं कि आप आज के इस कार्रवाई को मनसूख करें और दोबारा इस ऐवान में संजीदगी से कार्रवाई होनी चाहिए। शामुत करें साहब प्लीज। शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने तीनों बड़ी जमातों के फाजिल मेंबरान को मौका दिया, PMLN के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और JUI की जो पार्लिमानी लीडर्स हैं, उन्होंने अपनी गुफ्तगू का इजहार किया। जनाब वाला, हमेशा सिक्के के दो रुख होते हैं और इनको हक है कि अपना नुक्ता नज़र पेश करें और हमारा फ़र्ज़ है कि हम कौम के सामने जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो पेश करें। अब ये जनाब वाला देखें, ज़रा रवैया देखें अपोजिशन का। पूरी गुफ्तगू करने के बाद जवाब सुनने का हौसला नहीं है। जवाब सुनने का हौसला होना चाहिए था, हौसला होना चाहिए था। देखिए आप जायज कर रहे हैं ना, इस तरह तो हाँ मुझे दे दे। The House is adjourned to meet again on Friday, the 21st December at 11 a.m. इजलास मुलतवी कर दिया गया है। इस वक्त हम आपको बताएं कि ये कहा गया है कि अब जो इजलास है उसे मुलतवी किया गया है। फ्राइडे तक ये इजलास मुलतवी किया गया है, 11 बजे का वक्त दिया गया है। तो तमाम तर जो आज कार्रवाई रही है वो मिनी बजट बिल और स्टेट बैंक बिल पर कानून साजी के लिए कौमी असम्बली में कार्रवाई हुई। और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।